بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوری نیوز چینل کے لائیو اسٹریٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان راجہ افتخار احمد، اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز راجہ افتخار کے ساتھ۔ ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے انچارج ہیں محمد صدیق، جبکہ کیمرہ مینی کے پرائز سر انجام دے رہے ہیں ہمارے جان زیبی۔ ناظرین، آج کا ہمارا ہاٹ ٹاپک دنیا کی بہادر افواج پاکستان کے سپہ سالار کا انتخاب۔ جی ہاں، افواج پاکستان کے سپہ سالار کا انتخاب آنے والے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ایک ہفتے کے اندر اس کا انتخاب ہو جانا ہے، اور آج کل جو ہے یہی موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو ضلع چکوال جو ہے یہ غازیوں اور شہیدوں اور جنرلوں کی سرزمین ہے۔ اسے جنرلوں کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چکوال کے ہر گاؤں، ہر گلی، ہر محلے میں آپ کو ایک شہید، آپ کو غازی اور آپ کو جنرل نظر آتا ہے۔ آپ ضلع چکوال کے کسی تحصیل میں چلے جائیں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں چلے جائیں، جب آپ وہاں کے قبرستانوں کا وزٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا پرچم، سبز ازادی پرچم قبروں کے اوپر لہرا رہا ہوتا ہے، جو کہ یہ چینک چینک کے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس مٹی، یہ جو خطہ ضلع چکوال ہے، اس کا کتنا اپنی دھرتی ماں کے اوپر قرض ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جو سپہ سالار کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ضلع چکوال کے دو جنرل جو ہیں وہ اس لسٹ میں ان کا نام شامل ہے۔ ایک جو ہے وہ ہمارے جنرل سیاح شمشاد مرزا ہیں، جن کا تعلق علاقہ علی پٹی کے یونین کونسل مولا سے، جبکہ دوسرے جنرل فیض حمید صاحب ہیں، جن کا تعلق گاؤں لطفا سے۔ تو کیا آنے والے جو دن ہیں اس میں چکوال کے نام پہ پورا نکل سکتا ہے؟ اسی ٹاپک میں ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ ٹاپک ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا نام مارچ ہے، اس کے کیا غرض و مقاصد حاصل ہو چکی ہیں، یا اس کا جو اختتام ہے وہ اب ہونے جا رہا ہے؟ اس بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جو ہمارے پہلے مہمان ہیں، وہ راجہ فرد بشیر ایڈوکیٹ ہے، نوجوان قانون دان ہیں، میڈیا کے ساتھ ان کا بڑا گہرا لگاؤ رکھتے ہیں، سیکٹری کوآرڈینیٹر ہیں چکوال پریس کلب کے۔ راج صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسری گیسٹ تشریف فرما ہے محترمہ امیرہ نسیم صاحب، یہ ماشاء اللہ سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، اور ہمارے ایپی نیوز گروپ کی جو ہے وہ چیئر پرسن ایگزیکٹو پارٹی بھی ہیں۔ میڈم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں راجہ فرد بشیر ایڈوکیٹ صاحب سے۔ راج صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں، ناظرین کو یہ بتائیں کہ جیسا کہ میں نے گفتگو کے بعد میں کہا کہ چکوال شہیدوں، غازیوں اور جنرلوں کی سرزمین ہے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ کسی گھر میں جب کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو جو پنجابی میں ہم ہماری مائیں بہنیں ہمارے بعد رہ جاتی ہیں تو وہ باقاعدہ کہتی ہیں یعنی یہ کنر جمی یہ جنت جمی۔ تو کیا جو موجودہ سچویشن ہے، موجودہ جو صورتحال ہے، آنے والے 4 دنوں میں نئے سپہ سالار کا باضابطہ اعلان جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے کرنا ہے، کیونکہ یہ ان کا آئینی اور قانونی اختیار ہے۔ تو اس کے لیے ایک لسٹ میں جو وزارت دفاع سے جو لسٹ ہے وہ سینیٹری بیس کے پاس پہنچ چکی ہوئی ہے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس دفعہ ضلع چکوال کے کسی ثبوت پہ نام یہ پورا لے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور جیسے کہ آپ نے بات کی تھی چکوال واقعی شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، کیونکہ یہاں پہ گنتی سے زیادہ کوئی بھی گھر ہے، اگر آپ ایک گھر کی مثال ہے تو وہاں پہ اگر 5 بھائی ہیں تو 2 سے 3 پاک آدمی آپ کو ملیں گے۔ کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا خاندان، کوئی ایسا ولیج، کوئی ایسا قصبہ نہیں جہاں پہ پاک آدمی کا کوئی آفیسر جوان وہاں پہ نہ ہو۔ تو جہاں تک رہی بات ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاک آدمی کا سپہ سالار کے پورا کس قسم جا رہا ہے، اب اگر سینیارٹی بیس کو دیکھا جائے تو اب دیکھیں میرا بھی علاقہ لڑی پٹی سے ہے، تو سید شمشاد مرزا ایک واقعی ہی سینیارٹی بیس کو دیکھتے ہیں، اس لسٹ میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس لسٹ کے حوالے سے دیکھا جائے، کیونکہ یہ تو ہم ان کے اپنے قوانین اور اپنے رول آف لا کے تحت انہوں نے ایک اس چیز کو فائنل کرنا ہے، یہ تو اب ان کی اتھارٹی ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ وہ کس بیس کو لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن سینیارٹی میں دیکھا جائے تو وہ بالکل اس لسٹ میں آتے ہیں، حالانکہ ابھی وہ رنبیڑی میں باقاعدہ ایک اپنا رول سر انجام دے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ اسپیشل جو ہوتے ہیں نا، وہ اس 222 بریگیڈ کو وہ کینڈیڈیٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے اگر وہ دیکھ رہے ہیں، اگر اس سینیارٹی بیس کو دیکھا جائے،
उनकी अपनी सर्विस को देखा जाए, सीनियरिटी को देखा जाए, तो मेरे ख्याल से दूसरे जो है ना हमारे चकवाल के जनरल फैज अली साहब, उनसे भी बेहतर जो सीनियरिटी में देखा जाए तो उनका मेरे ख्याल से बन सकता है। लेकिन ये कि अब ये पॉलिसी और ये जो रूल ऑफ लॉ है, अब ये देखना है कि जो मुतलका अभी जो मौजूद है हमारा वज़ीर-ए-आज़म, ये उस सीनियरिटी बेस को देख रहे होते हैं और उसको बकायदा अमल पैरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब देखें, अगर सीनियरिटी को देखा जाए और चकवाल के अवाम को देखा जाए, अब हकीकत यह है कि चकवाल का वाकई हक बनता है और ये उम्मीद भी हम करते हैं कि चकवाल वैसे इंशाल्लाह पूरा चकवाल के साथ निकलेगा, और इस पूरा निकलने की वजह से आने वाले दिनों में और आने वाले लाभ में चकवाल भी बहुत अपर लेवल पे जाएगा और वाकई ये बहादुरों की सरजमीन है। जैसे कि आप जानते हैं कि जनरल फैज अली का नाम इंटरनेशनल लेवल पर माना जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर माना जाता है, और हम बड़ा प्राउड फील करते हैं हमारे चकवाल के दो अगर सीनियर अफसरान अभी मौजूद हैं जनरल साहब, तो हमारी नई ख्वाहिशात है कि अल्लाह करे कि हमारा कोई ना कोई ऐसे हमारा आ जाए, तो हमारी बहुत प्राउड की बात है। वैसे आपसे आपकी बात की कलाकारी में माफी चाहता हूँ। जी जी ये सिर्फ दो जो जनरल का हमने जिक्र किया है, ये तो जो है अभी जो लिस्ट में एक उनका ऐसे ही। आ रहा है। इसके अलावा जो है जहाँ तक मेरा एक नाक़िस हाँ, सब है, बढ़िया है। ये तो तकरीबन 50 के लगभग इसमें जिला चकवाल की वज़ीर हैं, तकरीबन 50 के लगभग जो लेफ्टिनेंट जनरल है नहीं, ऐसे तो समझ लीजिए आज मैंने बहुत है। आज तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। मैडम आप अभी ये बताएंगे, जैसे कि मैंने गुफ्तगू के दौरान में कहा कि चकवाल शहीद हो जाने की और जनरल की सरजमीन है। चले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे कि राइस ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा बनाना ये तो वज़ीर साहब का आईनी और कानूनी हक है, वो किस तरीके से मैटर फैसला करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम आपको है कि ये पूरा चकवाल के नाम पे मिलेंगे, लेकिन क्या वजह है कि 75 साल मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद हुई हो गई, इतनी बेशुमार लाजवाब जो कुर्बानियाँ यहाँ के सपूतों ने अपने मुल्क के लिए दी और अभी भी दे रहे हैं, तो अभी तक अखबार में कोई MH या CMH की तरह का कोई हॉस्पिटल जो है वो ना बन सकता। यहाँ तक कि जो एक शामी शहर का लगार के वो छोटी सी कोई मौजूद है, लेकिन एक प्रॉपर जिसको शामी कहते हैं जो बने और उसके बाद फिर MH या CMH का जो क्या उन्होंने आ सकती है, वो अभी तक चकवाल को नहीं दी जा सकती। इसकी क्या मेन वजह जो है वो आप समझ करती हैं, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही है कि आपको पता है कि इतने टाइम से जो मुल्की हालात हैं उसकी वजह से जो सियासतदानों की आपस में ये जो चपकलिश है, आपस के इनके जो कंपटीशंस हैं, उसके फिर डेफिनेटली हर दफ़ा जो है वो जैसे नया कोई वज़ीर आज़म आता है ऐसे फौज की भी नई वो पॉलिसीज बन जाती हैं, हर वज़ीर आज़म अपने हिसाब से फौज को चलाता है उसको। तो ये है कि अभी रिसेंटली जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश जो है आवाम ने करनी है कि अपने जो है ना इस मुताबिक खास तौर पे चकवाल की आवाम को कि अगर जो है हमारी अगर मतलब गुड लक है तो अगर हमारे चकवाल से भी हो जाते हैं मुंतखब, तो इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे तो कुछ ना कुछ जो है वो जरूर। जी जरूर इंशाल्लाह, उम्मीद में दुनिया कायम है और चकवालियों के दिल अपनी बहादुर अफवाह के साथ रखते हैं और चकवाली जो है वो है कि ये इस दफा पूरा जो है वो चकवाल के नाम निकले। राजभर साहब कुछ बात करते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक लॉन्ग मार्च गुजरात में शुरू किया, इसके बजाय कोई जो उसकी वजूहत हुआ ऐसा नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जो आमदा इलेक्शन है वो बहुत करीब है। तो एक वजह ये भी बयान की जा रही है कि ये जो तैनाती होनी थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इसको लेके इमरान खान साहब बहुत संजीदा थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो किसी तरीके से जो है वो हुकूमत पे प्रेशर करके और प्रेशर डाल के तो इस जो तैनाती है इसमें उनको भी उनकी राय को शामिल किया जाए या उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। तो अभी ये जैसा कि मैंने कह दिया कि तैनाती जो आने वाले 4 से 6 दिन में या हफ्ते में ये फाइनल हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च अभी शुरू हुआ है, यहाँ से खत्म हुआ था फिर से वहाँ से शुरू हो गया, इसकी वजह से लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात और दुश्वारी का सामना है। स्कूल कॉलेज में अभी एक दो जो बंदे हैं PD के, वो बता रहे थे कि वहाँ पे जो बच्चों के जो पेपर है वो कैंसिल हो चुके हैं, अदालत तालीम जो है वो बंद है, कॉलेज स्कूल वहाँ पे बंद है, रोडें जो है अभी आज तक इजाजत दे दी है ये खोले। तो इस लॉन्ग मार्च का भी आप समझती हैं कि कभी भी जवाब बाकी है, उसका जो एंड है वो किस तरीके से होगा और ताकि वो सेफ साइड में मिल जाए। लेकिन ऐसा मेरा मैं आपको सबसे पहले एक क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा डायरेक्टली ना मेरा मामू ना मेरे
शख्स हूँ, ना मैं खुद किसी रिच पार्टी के साथ इन्वॉल्व हूँ, ना मेरा किसी एमपीए और एमएलए के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है। मैं जहाँ तक मेरा एक नाक़िस अमल है, जितना मेरा तजर्बा है, मैं उस वाले से बात करूँगा जो मेरा तजर्बा है। देखिए, अगर वो लॉन्ग मार्च कर रहा है ना, वो उसका आईनी और कानूनी हक है, ठीक है, वो इस चीज को आगे लेके आ रहा है। आगे अवाम अगर जो उसके साथ अवाम होगी वो उसकी सपोर्ट कर रही होगी। अब देखें, अब पिछली हुकूमत रही है, इमरान खान था, इमरान खान का जो मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस राजनीति कोर्ट में गुजरी है, तो मैंने खुद देखा है कि एक मार्च देखा है बकायदा, टीएलपी का मैंने देखे वहाँ पे लियाकत बाग बकायदा वहाँ पे डॉलर बाग करके वहाँ पे मार्च होते हैं, रोडें बन रही हैं। लेकिन देखिए, मुतबादल रोड, मुतबादल रास्ते मौजूद होते हैं, मुतबादल रास्ते मौजूद होते हैं। ये नहीं कि कई दफा ये नाम आ या कई दफा ये रुकावटें बनाई गई हैं, इससे पहले जिंदगी में रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। हर हुकूमत, कोई भी हुकूमत को उठा के देखें, मैंने पहले बात की कि मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात करने लगा हूँ। किसी भी हुकूमत को उठा के देख लें, कोई भी हुकूमत आ रही होती है तो दूसरी हुकूमत लाजमी है जब वो मिड टर्म गुजरता है, आप बेशक आप तारीख उठा के देख लें, किसी भी हुकूमत ने पूरा टाइम पीरियड नहीं दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे सूरत ऐसी हो जाती है कि जब ये मिड टर्म गुजरता है तो दूसरी जो मुखालिफ जो अपोजिट जो तंजीमें हैं जो कुछ होती हैं और कुछ बन जाती हैं, दो ढाई जब वो साल गुजरते हैं तो इतना टाइम पीरियड गुजर जाता है तो मुख्तलिफ तंजीमें मिलकर के कभी वो खुद अगर पावर में नहीं होती तो वो 4-6 को साथ अटैच करके प्रॉपर एक तंजीम बना के, जिस तरह अभी देख लें आप कहता है तो 4 तंजीमें मिलकर एक अपना माहौल बना रही है, तो ये इस तरह की तरह प्रॉपर ये चीजें चलती आ रही है, ठीक है। और अगर वो कर रहे हैं, अगर मामला जहाँ तक एक बात वो अगर तैनाती के वजह से, ये तो अब वो बेहतर बता सकते हैं कि उनका पीछे राज क्या है। मैंने तो ये बात की और जो आम भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मीडिया वाले और सब लोगों के नजर के सामने जो एक सिचुएशन गुजर रही है, मैं तो उस तरह की बात की है। अगर तो वो कह रहे हैं कि मुसालियाओं का मिशन है, अब देखिए, अब बेशक जो जैसे कि आप मूली की कुछ वर्कर और कुछ सपोर्टर कह रहे हैं कि गोलियां ऐसे आई हैं, ऐसे आई हैं, ऐसी आई हैं। अब देखिए, गोली तो नहीं देख रही कि इमरान खान है, अब गोली नहीं देख रही कि रजत खा रहे हैं, गोली तो जहां पे शूट होना है तो आगे जाकर उसको उसने तो नहीं देखना कि किसी फौलादी सीना है या किसी कमजोर का है, किसी मजदूर का है या किसी जरात का है। गोली देखने जो कुछ बड़ा है छोटा है ये अलग चीज है, लेकिन हुआ हुआ है, इसको आप कहते हैं आप ये नहीं कह सकते कि हुआ नहीं हुआ, हुआ हुआ है। और अगर हुआ हुआ है, देखिए ये एक जिंदगी और मौत का खेल था, जिंदगी और मौत का खेल था, बेशक वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, हुआ है और इसमें एक बंदे की जान भी गई है और 13-14 जख्मी भी हुए हैं। प्रॉपर अगर वो एक बात कर रहे हैं तो उसका कानूनी और आईनी हक था, आके वो बेशक अगर वो वहां पे बैठता, अपना धरना देता, पूरा मन एहतजाज करता, ये कानून जिसको इजाजत देता है कि वो प्रॉपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। अगर हुकूमत होती है कि आवाम उसका साथ देती है तो वो अपना हक ले लेते, अगर आवाम साथ नहीं देती तो वो चुप करके वो अपने घर में चला जाता। ये तो क्योंकि कानूनी हक मौजूद है ना, उसको राइट दिया गया है, पाकिस्तान मौजूद है तो उसको राइट है। मैडम राजा बशीर एडवोकेट साहब ने इन कानूनी पॉइंट का जिक्र किया है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर मुल्क का कानून उसकी शाही को इत्तेजाज या इतलाफ राय जो है ये यहाँ पर डॉक्टर भाई और बात आती है गुज़श्ता मैं टीवी देख रहा था तो मैं न्यूज़ सुन रहा था, तो कराची की बात है तो मैंने देखा खबरनामे में, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि अभी हालांकि नूनी की हुकूमत चल रही है, वहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर थी, हॉस्पिटल का अमला था, उन्होंने कोरोना को फंड था जो उनको मिला नहीं था हॉस्पिटल का, उन्होंने वो लेडीज एहतजाज कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिंध पुलिस ने उन लेडीज को बड़ा जबरदस्ती मारा है और वहाँ पे धकेल के गाड़ी में डाल के बकायदा लेके जा रही है। अब देखिए, चले इमरान खान को साइड पे करते हैं, एक मिनट के लिए इमरान खान को सियासत, एक मिनट के लिए साइड पे। अब देखिए, वो अदारे की लेडी थी, अदारे के एजेंट से जो अपना हक लेने के लिए आ रहे थे, देखिए अगर किसी ने उनको कहा था और उनको बकायदा रूल समझाया गया था कि हम आपको देंगे ये बेनिफिट या फंड ये देंगे हम आपको, अगर वो एहतजाज करने वहां पे पहुंची है तो प्रॉपर वो एहतजाज कर रही थी तो क्या हो जाता। अब ये कोई तरीकाकारी कोई एहतजाज या आवाज बुलंद करने आता तो उसको आप जबरदस्ती कस्टडी में डाल के आप उसके औलाद को बंद कर दे, बंद सलाह कर दे, क्या इससे आवाज बंद हो सकती है? ये गलत बात है। ठीक, उसका राइट है, हर शहरी का राइट है। ठीक, अगर कोई भी उसको कोई भी मसला पेश आता है उसका राइट है कि वो बात अपनी आवाज बुलंद करे। ये नहीं कि आप किसी की आवाज को आप गले से बंद कर दें, अपना सोच यूज करके, अपनी पावर यूज करके आप उनको जेलों में डाल दें, उनको
थाने में बंद रहते हैं, ये गलत बात है। बिल्कुल ठीक। मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस सिमत में राजा पर मुझे एडवोकेट ने इशारा किया है, कुछ जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं, बिल्कुल मैं इस हद तक तो मुतफिक हूँ कि किसी भी मुल्क में जो एहतजाज हो गया, अगर पुरअमन एहतजाज आप करना चाहते हैं, आज़ादी अदालत राय का जो हक है, इजहार शहरी का आईनी का कानूनी हक है। मगर अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया है कि पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें और जो गुज़श्ता जो यहाँ पे धरने हुए हैं, एहतजाज हुए हैं, इल्ज़ाम मार्च हुए हैं, उनको जब हम देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि ये एहतजाज जो पुरअमन एहतजाज शुरू होते हैं, ये बिल आखिर में जाके ये खूनी एहतजाज में जो है ये उसमें तब्दील हो जाते हैं, ये खूनी एहतजाज की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी उसमें भी फैसलाबाद में जो एक धरना हुआ, एक जमात का धरना हुआ, तो उसमें जो है वो करोड़ों रुपए की जो सरकारी इमदाद है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो उसको जो है वो नजर आतिश कर दिया गया। मेट्रो बसों को आग लगा देगी, उसके बाद बिल्डिंग को आग लगा देगी, मोटरसाइकिल लोगों की गाड़ियां जो जला दी जाती हैं। तो क्या ये आप समझती हैं कि ये किस किस मतलब मुल्क में इस किस्म का एहतजाज होता है? क्या आप समझती हैं कि इस किस्म का एहतजाज जो है इसकी कोई कानून या कोई किसी आइन में भी गुंजाइश है? और दूसरा ये है कि एहतजाज को किस किस तरह ख्याल में रख के एहतजाज करना चाहिए? जी बिल्कुल, एहतजाज तो जो है वो आवाम का हक है, आईनी कानूनी उनका हक है कि वो एहतजाज करें अगर उनकी हालात को बेहतर करने के लिए। लेकिन ये है कि ये जैसे पहले स्टार्ट में बताया जाता कि ये पुरअमन एहतजाज होगा, फिर उसमें उसको एक खूनी एहतजाज की जो है वो शक्ल दे दी जाती है और एंड पे जो है वो सियासतदानों पे हमले हो जाते हैं और उसमें जो लोग सपोर्टर्स होते हैं, गरीब घरों से आए होते हैं, वो बेगुनाह बेचारे मारे जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये है कि आइनन कानूनन जो है वो इसके लिए सियासतदानों को भी चाहिए कि वो अवाम को भी जो है वो अपने साथ अगर लेके चलते हैं, अपने सपोर्टरों को लेके चलते हैं, तो अपने लिए जितनी सिक्योरिटी मतलब उनकी होती है, इसी तरह आवाम को भी वो सिक्योरिटी मुहैया करें और उसके अलावा हर मुमकिन कोशिश करें कि वो जो एहतजाज है वो पुरअमन एहतजाज हो और जो उनका होता है उनका अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना, जिस मकसद के लिए वो एहतजाज किया जाता है वो उस मंजिल तक पहुंचे और उनकी जी बिल्कुल नाज़रीन, एहतजाज जो है ये आशियाई का कानूनी और आईनी हक है। सिर्फ ये हुकूमत और अपोजिशन एहतजाज करने वालों को और जो एहतजाज को फेस कर रहे हैं उन्हें कोई एसओपीज जो है वो इसके बनाने चाहिए कि आया एक जगह आप मुख्तसर कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद का जो मुजाहिदीन ऐसे हैं नहीं वो के लिए बकायदा प्रॉपर देखिए, कोई भी अगर एहतजाज के लिए निकलता है ना, उसके लीडर को चाहिए कि वो पहले एसओपी बनाए। एसओपी बना के अगर वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने क्याम करना है 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी उनका एक एसओपी ने या जो भी उन्होंने क्याम करना है, तो उनको प्रॉपर चाहिए कि एक ऐसा ग्राउंड दे दिया जाए, कोई ऐसी सेफ जगह दे दी जाए जैसे आम पब्लिक भी डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल ठीक है, कोई ऑफिशियल वर्क भी डिस्टर्ब ना हो, कोई पेशेंट भी डिस्टर्ब ना हो और आम पब्लिक भी डिस्टर्ब ना हो। तो उससे ये होगा कि वो अगर कोई सेपरेट कोई बेशुमार हमारे ग्राउंड है, बेशुमार हमारे पार्क मौजूद हैं, इस तरह के कोई एसओपी के लिए कहता है कि जगह मुख्तस कर दी जाए, वहां पे बैठ के वो अपना पूरा एहतजाज करें। सेकेंडली, अगर कोई जिस तरह आप बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पुरअमन एहतजाज को खूनी एहतजाज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए, अगर 2000 बताया तो 2000 में से 2000 बंदा नहीं कर पाता, 2000 में से हो सकते हैं 50 बंदे हों, 20 बंदे हों या 200 बंदे हों, जिनकी वजह से ये सारे मामला डिस्टर्ब होते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए, एक तो जो भी जो लीडर है कानून है, कानून को फॉलो करना चाहिए, एसओपी बनानी चाहिए, और जो भी इसकी गिल्टी पाई जाती है, अब हमारे पास सोशल मीडिया बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं रह सकती, तो कोई भी जो इस तरह की नेग्लिजेंस करता है उसके खिलाफ कड़ी सजा होनी चाहिए, बेशक वो अपनी पार्टी का मेंबर हो, एग्जीक्यूटिव मेंबर हो, चाहे वो अहदेदार हो, कोई भी इस तरह की गिल्टी अगर करता है, नेग्लिजेंस करता है, गिल्टी पाया जाता है, तो मेरे ख्याल से उस लीडर को भी चाहिए कि वो क्योंकि पार्टी के लिए एक बेइज्जती का बायस बन रहा है, तो उसको चाहिए कि वो भी साथ हुकूमत के साथ मिलके उस बंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, ताकि वो, क्योंकि ये गवर्नमेंट को हमारी गवर्नमेंट है और हमें इंतजार करना शायद आप है, लेकिन किसी को डिस्टर्ब किए बगैर, किसी को परेशान किए बगैर, अब ये गलत है कि आप हॉस्पिटल के बाहर धरना देके बैठे, आप हॉस्पिटल है, आप आम आवाम के लिए वो एक जिंदगी और मौत का सिस्टम होता है, तो वहां पे आप बैठे, ये गलत बात है। किसी भी शहर में बैठे आप आवाम के लिए डिस्टर्ब करें, ये गलत है। आप पुरअमन साइड ऐसी जगह हो जहां पे एहतजाज किया जाए, वो रात का कानूनी आईनी हक है, लेकिन सेपरेट हो। जी परेशान नहीं होता। बिल्कुल जैसे कि आपने सुना कि हमारे शुरा ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। एहतजाज की अगर बात करें, एहतजाज हर शहरी का कानूनी आईनी हक है, लेकिन उसको एक
معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں، آپ یورپین کنٹری میں دیکھتے ہیں، دیگر ممالک میں دیکھتے ہیں، وہاں صبح لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، وہ بھی احتجاج کرتے ہیں، ان کو بھی اختلاف رائے ہوتا ہے، حکومت سے ہوتا ہے، مختلف ایشوز پہ ہوتا ہے، لیکن وہ صبح نکلتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں شام کو منشیات وغیرہ اپنے اپنے گھر کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کر واپس چلے جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو ہے جیسا کہ ہمارے سرکار نے پہ ڈیٹیل سے بریف کر دی ہے، تو ہوپ فلی اس کے بارے میں بھی آنے والے دنوں میں کوئی حکومت جو ہے وہ ایس او پیز طے کرے گی. اور اس کے علاوہ جو ہمارا جو وہاں کا ہارٹ کا وہ